जपियां चुमियां चट्टे करना जी उन्हें आखिरी बार कर लवो उत्थे फिर मैं उन्होंने मार दिता। कितने फेर मारे? 3 तो 4 मारे ने। अपनी बीवी को आशना के साथ घर से भागते हुए देखा तो शोहर ने पीछा करके दिन दिहाड़े सड़क पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। क्या नाम है आपका? मंजूर अहमद जी। मंजूर, क्या करते हो? रंग का काम करता हूँ। रंग का काम करते हो, कब से कर रहे हो? मैं जी तकरीबन 10 साल से कर रहा हूँ। 10 साल से। जी शादी हुई है? हाँ 3 बच्चे हैं हमारे पास पे। कितनी एज उनकी? बच्ची हमारी 17 साल की है, ठीक है। एक बेटा 20 साल का है, एक बेटा 13 साल का है। ठीक है। और 1 साल से हमारी बीवी के ना उन्हें गैर मर्द के साथ अपने तलक रखे हुए थे। बहुत समझाया सर, बहुत समझाया, नहीं समझे। ठीक है। उन्होंने हर बहन भरा ने सब ने समझाया, नहीं समझे। ठीक है। कि इत्थों तक कि वो टिकटॉक बना के मेरे मोबाइल ते छड्डदे सी हफ्ते। एक धी दा आशिक बनाया सी, एक उन्हें आपदा बनाया सी। वो चारे मिल के ते मेरे इज्जत नाल खेड रहे सी। अच्छा। ते मेरे को सर बर्दाश्त नहीं होया, मैं उन्होंने मार दिता है। तलाक किदों दी सी? तलाक नहीं दी सर। नहीं दी तलाक? नहीं सर, तलाक मैं नहीं दी। एक नोटिस घलाया सी, ठीक है। बस वो भी पता नहीं पहुंचिया कि नहीं नोटिस। उस तो बाद मैं तलाक नहीं दी। नोटिस तो भेजा सी कि कोई सोच समझ जाएगी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆਸ਼ਕ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਸ਼ਕ ਨੂੰ ਫੜ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ? ਸਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਈ ਹਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲੀ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਸ਼ਕੀ ਮਸ਼ੂਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆਸ਼ਕ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਿਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਪਤਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋ ਖਲੋਵੋ, ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਰ ਵਾਪਤਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋ ਗੁੱਟ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਮਾਰਤਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਸਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਆਪਦਾ ਲਿਆ ਸੀ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਿਆ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਇੱਕ ਪਸ਼ਾਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਸਟੋਨ ਦੇ ਤੇ ਬਰਫ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੇ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਜੇ? ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਸੀ। ਕੌਣ ਕੌਣ? ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਛੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਵਾਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਆ ਦੋ ਨੂੰ। ਕਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਸਿੱਧੀ ਸਰ ਉੱਥੋਂ ਕਰੋ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦੋ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੀ ਜੁਆ ਖੇਡਦੇ ਆ? ਤਾਸ਼ ਤੇ। ਤਾਸ਼ ਤੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਬਾਹਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਆਲਮ ਵਾਲੇ ਨਾਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੱਤੋ ਚੁਆਈ ਏ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਜਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਡਈ ਸੀ, ਮੋਸਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਨੇ ਵਾਪਟਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ? ਸਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਗੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਡਕੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਗੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਗੈਰਤਮੰਦ ਸਾਂ, ਬਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਇੱਕ ਗਿਆ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਇਆ? ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਇਆ? 2021 ਚ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲ ਲੱਭ ਜਾਣੀ, ਜੈਸੀ ਲੱਭ ਜਾਣੀ, ਰੰਗ ਰੰਗੀਲੀਆਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਲਗੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਵਾਪਟਾ ਦਫ਼ਤਰ ਗੁੱਟ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਥੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਲੱਭੀ ਸੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਮਾਰ ਵੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਲੋਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਕਤਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਕਤਲ ਬਸ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਿਲਾਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਲ ਲੈ ਬੇਲੀ ਨੂੰ, ਜਪੀਆਂ ਚੁਮੀਆਂ ਚੱਟੇ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਮਾਰਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਆਪਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਫੇਰ ਮਾਰੇ? 3 ਤੋਂ 4 ਮਾਰੇ ਨੇ। ਕਤਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ? ਲੜਕੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲੜਕੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੜਕੇ ਜਦੋਂ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤ ਨੇ, ਲੜਕਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਵੇ ਜਦੋਂ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ?
ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੋਹਸਨ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 2 ਬਚ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਤਿੰਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਵੰਦੇ ਅੱਬਾ ਅੰਮੀ ਬੁਲਾਏ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਬੇਟੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਾਰਿਆ ਬਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੰਜਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ किस तरह इनका जो बेटा कत्ल हुआ ये उस भाई के भाई हैं ये उनके वालिद हैं इन पे क्या अब गुजर रही है और क्या हालात हैं इनके और बड़ा बेटा था छोटा था बात करते हैं इनसे बड़ा बेटा था छोटा था इससे क्या नाम था आमिश आमिश आपके 2 बेटे थे बस दोनों बेटे थे पढ़ता था नहीं वो काम करता था क्या करता था वो सेल पॉइंट पे ना वो मेहनत मजदूरी करता था वो कितनी एज थी 23 साल थी तकरीबन ठीक है ये मामला हुआ किस तरह यार ये मामला ऐसे है मैं हार्ट पेशेंट हूँ मुझे रात 12 बजे के राउंड अबाउट आया कि तकलीफ हुई ठीक है तो फिर मैंने इन दोनों भाइयों को भेजा जाओ मेरी जल्दी जल्दी से मेडिसिन ले आओ ठीक है टाइम क्या था रात तकरीबन 12 बजे थे ठीक है तो जब ये गए ये चौक बिल्लू राम तक तो फिर ये वापस भाग आया मेरे पास ठीक है कि ऐसे ऐसे उन्होंने ना आमिश को गाड़ी में ये जो मंजूर है उर्फ जूरा चन्नी है वो सखावत ठीक है वो है उसके साथ 2 और है ठीक है ये गन पॉइंट पर बच्चे को छीन के अगवा करके ले गए ठीक है तो फिर मैं तकरीबन 1 घंटा तक हम देखते रहे ढूंढते रहे उसके बाद 2 बच्चे आए गिल्ला वाला के मियाँ वाला घाट की तरफ से उन्होंने बताया मुझे कि आपके बेटे को ये आदमी है ना जो वो गाड़ी में लेकर जा रहे हैं आल्टो में ठीक है सुजुकी आल्टो में तो ये हमने देखा वापटा के पास थोड़ा सा पीछे देखा है आप उधर पता करें मैंने भी उनको भी साथ ले लिया यार 2 और 2 चलो 4 हो जाएंगे तो जब मैंने देखा वो सामने नजर आ रहा था लाइटों से कि ये मंजूर और उसका साथी है जो मंजूर और जुरा और सखावत चन्नी ठीक है ये दोनों फायर मार रहे थे इन तीनों को अच्छा हाँ तीनों कौन थे तीनों से मुराद है पहले जब ये तकरीबन राउंड अबाउट 1 बजे की बात है ठीक है बच्चे को उन्होंने अगवा करके ले गए हैं साथ जुल्म ज्यादती करते रहे हैं ये जो है ना वो मंजूर और जूरा इसने गालबन उस बच्चे को नंबर दिया अपनी एक्स वाइफ का मेरे हिसाब से वो लोग जो कह रहे हैं वो मुतलका थी अच्छा मुलजिम जो है वो कहता है कि ये जो भाई था इसके जो है तल्लकात मेरी बीवी के साथ ठीक नहीं थे लेकिन बात ये है कि उसने तलाक दे दी थी अच्छा अगर तलाक नहीं दी थी तो मेरे पास एक दफा तो आता अहले मोहल्ला को साथ लेकर अगर मैं ना बात करता तो फिर तो बात बनती थी ना अच्छा फिर क्या हुआ जब आपने अपने बच्चे को देखा वहाँ पे जब मैंने देखा वो लड़की थी जो इसके नंबर से डायल किया हुआ कि तुम आओ पत्तोगी से ठीक है वो पत्तोगी से अपने भांजे को लेकर आई कि पता नहीं क्या हो गया चूनिया में वो रात 12 बजे बेचारी पता नहीं किस हालत में आई ठीक है मुझे तो नहीं पता इसका लेकिन जब आई हमने जब मैंने देखा कि वो ड्राइवर था वो जोर से चीखा वो आमश के बुरसा आ गया इसको ठिकाने लगा दो फिर उन्होंने जो इतनी फायरिंग की है उन्होंने दोनों ने मिलकर कि मेरे बच्चे को उन्होंने शहीद कर दिया मौके पे शहीद कर दिया बच्ची को देखा पता नहीं वो भी मौके पे शहीद हो गई थी अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ फिर 15 पे कॉल की वो पुलिस वाले आए फिर उन्होंने कॉल इकट्ठे किए देखा सबको मरे पड़े हैं दोनों वो एक बच्चा था वो जख्मी था उसने बयान दिया है पुलिस को उसने भी यही इनके नाम ही बताए हैं
बड़े भाई हैं, कभी जिक्र किया हो भाई वो उस लड़की से मैं बात करता हूँ, मेरी शादी होनी चाहिए, या जो भी कोई बात हुई आज तक ऐसी? कभी नहीं की उसने, कभी नहीं की। कभी नहीं की उसने मेरे साथ। भाई था, कर ली होगी कोई है? नहीं, ऐसी कभी नहीं की बात उसने मेरे से। और ये मेरे साथ मदई थे। आइए हम पुलिस के पास भी चलते हैं, पुलिस क्या इस बारे में कहती है। ये जी ये मुल्ज़म मंजूर जो है ये इधर चूनिया का रहायशी है। इधर इसने जो उस औरत का आशना था उसका नाम एमएस शेख, उसको इधर अपने काबू में किया, किडनैप किया, उसको साइड पे रखा। उसकी मदद से जो इसकी बीवी थी वो नाराज़ होकर तकरीबन 4 माह से पत्तोकी में रह रही थी, उसको एमएस का फ़ोन करवा के उधर इसको ट्रैप करके इधर बुलवाया। सुना है कि उसने तलाक दे दी थी। नहीं, ये कंफर्म नहीं है, बस ये सुनने में आ रहा है, लेकिन अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हुई। वैसे जो हमारे इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड चीज़ है वो ये है कि इसने इस लड़के को अगवा किया जो एमएस है, जो साथ मर्डर हुआ है, इसकी मदद से कॉल करवाई उस अपनी बीवी को जो कि पत्तोकी में 4 माह से रिहायशी थी। उधर से उसने एक अपने जो जिसके साथ वो अपनी बेटी की शादी करना चाह रही थी, उसका नाम मोहसन है, उसके साथ वो मोटरसाइकिल पे सवार होकर तकरीबन रात 1:30-2 बजे इसको मिलने चूनिया पहुंची है। तो ऑलरेडी इसने एक प्लानिंग के तहत मनसूबाबंदी की हुई थी। इसने एमएस को साथ लिया, एक गाड़ी इस्तेमाल हुई, वो गाड़ी भी हमने रिकवर कर ली है। एमएस और ये और कुछ मुल्ज़म जो अभी बकाया हैं उनके साथ ये गाड़ी में उनका रास्ते में वेट करना शुरू हो गया। जो जब वो इधर चूनिया वापडा ऑफिस के पास पहुँचे हैं मेन रोड पे, इधर इनका उनके साथ आमना सामना हुआ है। तो ये जो मुल्ज़म मंजूर है, जो मेन मुल्ज़म है, इसने उधर पहले तो बीवी को कत्ल किया अपनी को, उसके बाद ये जो लड़का जिसको इसने हॉस्टेज बनाया हुआ था एमएस, उसको मर्डर किया। उसके बाद जो तीसरा बंदा था जो पत्तोकी से उस औरत के साथ आया था, नाजिया बीबी के साथ, अपनी तरफ से इसने उसको भी कत्ल कर दिया। लेकिन वो लकीली वो उसको इंजरीज आई हैं, बुलेट इंजरी, 2 घायल लगे हैं उसको, लेकिन उसकी जान बच गई, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। सर आपकी तफ्तीश क्या कहती है, ये वाकया किस तरह, कैसे, किस नज़र से देख रहे हैं? ये जी अपने इस जो मंजूर है, ये जो मेन ऑर्गेनाइज़र है इसका, इसने इसको प्लान किया है। इसको अपनी बीवी पे शक था, किरदार पे, और ये जो इसकी बीवी है, इसकी बेटी की शादी अपनी मर्ज़ी से किसी उधर पत्तोकी में जिन लोगों के करना चाह रही थी, उनका किरदार भी इतना कोई अच्छा नहीं था, तो इस बंदे को इस चीज़ का रंज था। इस रंज और रंजश की वजह से इसने अपनी बीवी को एक ख़ास मनसूबाबंदी के तहत बुला के इधर कत्ल कर दिया है। सर आप नहीं देखते कि ये वाकया गलत सरासर हुआ है? ऑफ कोर्स ये एक बहुत बढ़िया एक जुर्म है और ज़्यादती की गई है। अगर देखिए, अगर आप अपनी बीवी के साथ आपका कोई इशू है तो आप उसको डाइवोर्स कर दें, अलहदा कर दें। इस तरह किसी इंसानी जान को कत्ल कर देना, मेरा ख्याल ये बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती है। सर ये बंदा कोई मंशियात का भी काम करता था? जी, इसके बारे में मालूम हुआ है कि ये साबका रिकॉर्ड याफ्ता है और मंशियात फरोशी के मुकदमात भी इस पर मौजूद हैं। सर लास्ट पे जो आवाम आपको देख रही है, कोई मैसेज? बस ये मैं ये कहूँगा कि हमारी सोसाइटी में जो अब अदम बर्दाश्त का माहौल पैदा होता जा रहा है, ये इस तरह के वाक़यात ये एक अदम बर्दाश्त और जहालत की निशानी है। इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए, इनकी रोकथाम होनी चाहिए और सेंसिटाइज करना चाहिए सोसाइटी को। आपका अगर किसी बीवी के साथ, बहन के साथ कोई इशू है तो आप उनको कतई ताल्लुक़ हो जाएं। इस हद तक जाना कि उसकी जान ले लेना और ख़ुद को भी मुसीबत में डाल लेना, मेरा ख्याल ये बिल्कुल गलत काम है।